Good morning, students. Today we'll start about the oogenesis and the menstrual cycle. Okay, so first, what is the process? The oogenesis is the process that is the formation of mature female gamete. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from the spermatogenesis. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell, that is called oogonia, are formed. Means when the fetus is there at the mother's womb, at that condition the oogonias are formed, or the gamete that is called the ovum egg mother cell is formed here. Within each fetal ovary, no more oogonia are formed and added after the birth. ठीक है, बार्थ होने से पहले when it is in fetus condition, then all the egg mother cell or oogonia are formed there. These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division up and get temporarily arrested at that stage called the primary oocyte. Okay, next one is coming. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa. Okay, and each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called the primary follicle. Okay, a large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. And therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. Okay, the primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells, and the new theca are called secondary follicles. New theca means new layer surrounding. So look at here. This is actually we'll complete that one. There is a primary follicles is this one. And then primary follicles are developed into secondary follicles, means more layers are formed, and then secondary follicles is converted into tertiary follicles with antrum, which is called the fluid filling the vacuoles, which is called the antrum here, and then it is converted into Graafian follicles. So first stage is coming oogonia. Oogonia means egg mother cell. Egg mother cell is actually dividing, but in primary oocyte it is actually sticking or arrested in meiosis 1. Which one? The first prophase. Okay. Then primary oocyte is now, due to we can say the meiotic division, it is completed prior the ovulation. So at the time of birth stage, childhood, puberty, this primary oocyte condition is there. And after that, it is due to the first meiotic division is completed when the puberty enters. ठीक है, तो प्रोफेज 1 में ये क्या हो जाता है, प्राइमरी oocyte जो है ये प्रोफेज 1 में क्या हो जाता है ना, अरेस्टेड हो जाता है. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और कंटिन्यू नहीं हो पाते. कहाँ पे कब कंटिन्यू होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन? ना व्हेन द चाइल्ड इज एंटरिंग इन प्यूबर्टी. So at that condition, primary oocyte is dividing meiotically, first meiotic division, and that is secondary oocyte and first polar body. Okay, so now we are coming again. Okay, next one we are coming about the secondary follicle soon transform into a tertiary follicle, which is characterized by a fluid filled cavity called the antrum. The theca layer is organized into an inner theca interna and outer theca externa. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the primary tertiary follicle grows in size and complete its first meiotic division. Okay, so जो फर्स्ट meiotic division जब complete होगा, ये जो प्राइमरी oocyte जो है ये किसमें स्टेज में फिक्स हो गया था ना, प्रोफेज 1 में. अभी प्रोफेज 1 के बाद क्या हो जाएगा ना, जब भी ये कन्वर्टेड हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल, जब भी ये टोटली मैच्योर हो जाएगा, सो एट दैट टाइम they are converted into, in case of the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. It is the anuchal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. Already I told you here that is secondary oocyte and first polar body.
secondary oocyte retains the bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. Okay, next one, does the first polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? That will afterwards we'll answer. At present, okay, the tertiary follicle further changes into mature follicle. देखो हम tertiary follicle है antrum के साथ, ये कौन सा follicle में convert हो गया ना, Graafian follicle. The secondary oocyte forms a new membrane. यहाँ पे Graafian follicle में कौन सा condition में है, secondary oocyte condition में है. तो secondary oocyte forms a new membrane called the Zeuna pellucida after surrounding it. The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte, जिसको ही हम क्या बोलेंगे, ovum, है ना, from the ovary by the process of ovulation. यहाँ पे एक चीज़ है, जो ये सेकेंडरी oocyte जो कंडीशन है, जो ओवम है, इसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन है ना, ऑलरेडी आई हैव गिवन हियर इन द नोट्स, सो यू विल बी फॉलोइंग, यू कैन अंडरस्टैंड. ये देखो उगोनिया प्राइमरी oocyte कंडीशन में जब आ जाएगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा कब, नाउ आफ्टर द प्यूबर्टी. Okay, when the child enters into the puberty and after the birth, no other egg will be formed there. Okay, so next one is coming about that, means in that condition, no more oogonia. This oogonia, whatever is formed, that is before the childbirth, no more oogonia is formed after the childbirth. So that oogonia is now coming to the primary oocyte. Primary oocyte condition में क्या हो जाएगा, when the primary oocyte condition is there, first meiotic division is rested where, at the stage of prophase 1, then it will be completing where, after the puberty. Means when the primary oocyte is at the condition of first meiotic phase, means first meiotic prophase, that's before the birth it occurs actually. After the birth it will be remaining in a resting stage, इसको हम बोलते हैं, है ना. तो जब भी ये फर्स्ट मियोटिक प्रोफेस कंडीशन में आ जाएगा तभी बिफोर बर्थ फिक्स हो जाएगा. उसके बाद जब भी चाइल्ड एंटर होगा प्यूबर्टी में, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट प्राइमरी oocyte टू सेकेंडरी oocyte, एंड साथ ही साथ फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है, सेकेंडरी oocyte इसके बाद क्या हो जाएगा ना, सेकेंडरी oocyte कंडीशन में क्या होगा, जब इट इज स्टार्टेड द मियोसिस सेकेंड, है ना, ये मियोसिस फर्स्ट हो गया, मियोसिस सेकेंड अरेस्टेड एट व्हिच फेज, मेटाफेज. देखो यहाँ पे कौन सा फेज में अरेस्ट हो गया था, प्रोफेज में. यहाँ पे कौन सा फेज में अरेस्ट हो गया सेकेंडरी oocyte, एट द मेटाफेज. बट ये मियोसिस 2 कंप्लीट कब होगा ना, व्हेन द स्पर्म एंटर. जब स्पर्म एंटर होगा, after the, we can say the when sperms entering, at that after that when the sperms enter into the ovum, means the secondary oocyte जिसको हम लोग बोलेंगे, तब जाके सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, है ना. और उसी को बोलते हैं हैप्लॉइड ओवम, और उसको हम लोग बोलेंगे ऊटीड कंडीशन. तभी जाके ऊटीड कंडीशन आएगा. देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन और ओवम हुई, इसको हम 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलेंगे, क्योंकि दोनों ही मतलब मेल और फीमेल, स्पर्म और ओवम दोनों के प्रोन्यूक्लिय यहाँ पे रहेगा. तो इसको हैप्लॉइड ओवम जब कंप्लीट होगा, कंप्लीट कब होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन, आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म. ये चीज याद रखना है, ठीक है. तो सेकेंडरी oocyte कंडीशन में ये जो ओव्यूलेशन हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte कंडीशन में ओव्यूलेशन हो जाएगा, बट एट दैट टाइम सो नेक्स्ट दिस इज द प्रोसेस ऑफ विच वन, oogenesis प्रोसेस. oogenesis प्रोसेस में क्या हो जाएगा ना, oogonia, egg mother cell, it is converted into which one na, egg, and that is the next one, after entry of the sperm it will be converted into oocyte, a haploid egg, that is called the haploid ovum, that is called the oocyte here. And here in the primary oocyte already it is told here, that is the cell start division and enter into the prophase 1, है ना. तो उगोनिया के बाद प्राइमरी oocyte कंडीशन में आ जाएगा, गेट टेम्पोरली अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड द प्राइमरी oocyte कंडीशन में. प्रोफेज 1 में ये कन्वर्ट मतलब फिक्स हो जाएगा. उसके बाद एट प्यूबर्टी में प्रोफेज मियोसिस 1 कंप्लीट होगा. सेकेंडरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी, अगेन सेकेंडरी oocyte किसमें फिक्स हो जाएगा ना, मेटाफेज, इसको बोलते हैं सेकेंड रेस्टिंग फेज, इसको बोलते हैं फर्स्ट रेस्टिंग फेज. ये सेकेंड मियोटिक जो है उसकी मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगा. उसके बाद जब एंट्री होगा इसी कंडीशन में ही निकल जाएगा. कहाँ से निकल जाएगा ना, ओवरी से ओव्यूलेशन हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा ना, दैट ओवम, दैट सेकेंडरी oocyte एक्चुअली आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म, when the sperms are entering at that fertilization, not before fertilization, you can say when entry just हुआ है, entry होने के साथ साथ क्या हो जाएगा ना, ये जो सेकेंडरी oocyte की जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन टोटली कंप्लीट होगा.
और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊटीट, मतलब हैप्लॉइड ओवम को हम क्या बोलेंगे, और उसके साथ साथ एक सेकेंड पोलर बॉडी भी क्रिएट होगा, है ना। तो सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte থেকে ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी, अगेन फर्स्ट पोलर बॉडी अगेन गिविंग राइज टू द टू सेकेंड पोलर बॉडी है। तो सेकेंड पोलर बॉडी है, ये भी सेकेंड पोलर बॉडी है और ये है ओवम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्चुअली oogenesis प्रोसेस। यहाँ पे देखो 46 फर्स्ट ओगोनिया की, देन 23 आ जाएगा आपके सेकेंडरी oocyte कंडीशन में, देन 23 आ जाएगा ओवम कंडीशन में, उसके बाद फिर 46 आएगा जब भी आप दोनों स्पर्म और ओवम की एंट्री हो जाएगा, दैट इज मीन इज कमिंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। Okay, this is total process of, this is the diagrammatic representation of the primary follicle, फिर secondary follicle, फिर antrum के साथ tertiary follicle, then Graafian follicle mature condition, Graafian follicle जब हो जाएगा तभी secondary oocyte condition आ जाएगा और उसी टाइम इसका ovulation और ovum की secretion हो जाएगा। Next one we are coming the menstruation cycle or menstrual cycle, the reproductive cycle in the female primates, that is called monkeys, apes and human beings, is called the menstruation cycle। एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट द प्यूबर्टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्की, मतलब फर्स्ट जो स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनार्की, बहुत बार आता है क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट वन, इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज के इंटरवल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीटेशन होगा। एंड द साइकिल ऑफ द इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। द वन ओवम इज रिलीज्ड और ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ दिस, देखो यहाँ पे टोटली आपको रिप्रेजेंटेशन देके रखा है, द मिडल ऑफ इस मेंस्ट्रुअल साइकिल, द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर, दिस फिगर में शोन है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज and the menstrual flow occurs and it takes last for which one 3 to 5 days, and the menstrual is result due to the breakdown of which one endometrial lining of the uterus and the blood vessels which forms the liquid। यहाँ पे यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम कंडीशन ऑलरेडी आपको पता है, ये एंडोमेट्रियम कंडीशन है। तो एंडोमेट्रियम जब होता है क्या, जब भी इसकी ब्रेकेज होगा, लाइनिंग की ब्रेकेज होगा, ब्लड वेसल्स की ब्रेकेज होगा, तभी क्या होगा ना मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर होगा। तो उसके लिए कुछ फेजेस है, ठीक है। तो यूट्रस एंड द ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स द लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर इफ इट द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। अगर फर्टिलाइज हो जाए तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, और अगर फर्टिलाइज ना हुए तो रिजल्ट इज मेंस्ट्रुएशन। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेट द प्रेगनेंसी, हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइन कॉजेस लाइक स्ट्रेस से भी हो सकता है, पुअर हेल्थ से भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा प्रेगनेंसी के लिए ही होता है। तो प्रेगनेंसी तो मोस्टली ये मेंस्ट्रुएशन की लैकिंग का मतलब ये इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become the fully mature Graafian follicle। ठीक है, तो ये है आपके फॉलिकुलर। देखो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन ऑकर 4 to 5 डेज, उसके बाद या 3 to 5 डेज, उसके बाद कौन सा फेज इज फॉलोइंग, फॉलिकुलर फेज। इन द फॉलिकुलर फेज इज फॉलोइंग बाय ल्यूटियल फेज एंड अगेन नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, बीच में जो आएगा ओव्यूलेशन। आई विल शो यू दैट वन। तो अभी देखो जी बोला है द फर्स्ट द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय व्हिच फेज, फॉलिकुलर फेज। ये है फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम द फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। देखो यहाँ पे अगर फॉलिकुलर फेज ओवरियन इवेंट्स को हम लोग देख लेते हैं, तो ये डेवलपिंग फॉलिकल प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया, फिर ग्राफियन। तो ये मैच्योर फॉलिकल किस में हो रहे हैं ना, ये फॉलिकुलर फेज में हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजेनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। मतलब क्या हो जाता है ना, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर ये रीजेनरेट मतलब और भी थिकनेस हो जाता है। प्रोलिफरेट मतलब इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वी कैन से द वॉल्यूम इट इज कमिंग। तो ये प्रोलिफरेट इंक्रीज इन मास, तो इट इज एक्चुअली प्रोलिफरेट हो जाता है। एंड दिस चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस। तो चेंज कहाँ में हो रहे हैं, एक तो ओवरी में होता है और यूट्रस में होता है। आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन। देखो पिट्यूटरी हार्मोन भी काम करते हैं इधर, ओवरियन हार्मोन भी काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2 पिट्यूटरी हार्मोन आपके पास है, एक तो LH का भी सर्ज जाता है, सर्ज मतलब पिक जिसको बोलते हैं, और FSH। पहले शुरू में क्या होता है ना, इसका इंक्रीज होते होते फिर एट द 14 डेज, देखो 14 डेज या 13 के बाद 15, 14 डेज में क्या होता है, इसकी पिक आता है। तो इसको ही बोलते हैं LH सर्ज, LH सर्ज बोलते हैं। वही LH सर्ज के हिसाब से क्या हो जाता है ना, ग्राफियन फॉलिकल या ओव्यूलेशन जब होता है तब उसमें इस्ट्रोजन, मतलब यहाँ पे बोला है ना 2 हार्मोन, एक पिट्यूटरी हार्मोन
एक ओवरियन हार्मोन, ओवरियन हार्मोन दो होता है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। और पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा है, एफएसएच और एलएच। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स कौन सा है ना, एलएच एंड एफएसएच इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ये जो फॉलिकुलर फेज मतलब ये स्टार्टिंग का क्या था ना, मेंस्ट्रुएशन फेज, उसके बाद अप टू 14 डेज इसको हम क्या बोलेंगे ना, फॉलिकुलर फेज। और फॉलिकुलर फेज में धीरे धीरे एलएच की पोर्शन जो सिक्रेशन बढ़ते हैं, एफएसएच की भी वही है, एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। ठीक है, बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन अ पिक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल। साइकिल की मिडिल कहाँ पे, 14 डेज, और 14 डेज में क्या होता है ना, इसकी पिक आता है ना। इसके बाद क्या हुआ ना, इन द मिडिल ऑफ द साइकिल रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच लीडिंग टू द इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड द एलएच सर्ज इंडिकेट्स द इट इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। देखिए यहाँ पर रप्चर हो गया, जब भी ये सर्ज आ जाएगा उसके बाद इसका रप्चर हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल एंड ओवम जिसको बोलते हैं, ये देखो रिलीज हो गया ओवम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। एंड द ओव्यूलेशन और ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय नाउ ल्यूटियल फेज। उसके बाद क्या आ जाता है, ये ओव्यूलेटरी फेज हो गया, एक हो गया मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, देन ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कब होगा ना, ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग हुई द रिमेनिंग पार्ट्स, मतलब रप्चर तो हो गया, अभी रप्चर हो जाने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल की जो रिमेनिंग पोर्शन ओव्यूल तो ओवम तो निकल के आ गए, ओव्यूलेशन ओवर हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। So remaining parts of the Graafian follicle transform as the corpus luteum. Corpus luteum secretes large amounts of progesterone. ठीक है, which is essential for the maintenance of the endometrium. Such as an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of the pregnancy. तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए किसको चाहिए ना, प्रोजेस्टेरॉन की चाहिए। अभी प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलेगा ना, कॉर्पस ल्यूटियम से। तो अगर ओव्यूलेशन ओवम तो निकल गए, लेकिन अगर फर्टिलाइज्ड हो जाए तो डेफिनेटली ये प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत है। क्यों जरूरत है ना, एंडोमेट्रियम जो लेयर, यूट्रस की जो एकदम अंदर की तरफ जो लेयर होता है उसको मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइज्ड एग नहीं हुआ तो और प्रोजेस्टेरॉन का काम कुछ नहीं है, तो अभी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम लेयर की ब्रेकेज हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सीक्रेट हुआ ना, कॉर्पस ल्यूटियम से, और एस्ट्रोजन कहाँ से सीक्रेट हुआ ना, मैच्योर फॉलिकल से। ये जो डेवलपमेंट फॉलिकल हुआ है उससे एस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ और ओव्यूलेशन में हेल्प किया। ठीक है, ओव्यूलेशन हो जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। Okay, during pregnancy all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. In the absence of fertilization the corpus luteum degenerate हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस धीरे धीरे क्या हो गया, डिजेनरेट, एंड दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन। जब भी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो गया, अभी यहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर भी दिखा रहे हैं आपको, है ना, यूट्रेन इवेंट्स। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ओवर इसमें कम हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जब फॉलिकुलर स्टेज डेवलपमेंट होगा उस कंडीशन में क्या होगा ना, ये भी धीरे धीरे प्रोलिफरेट होता जाएगा। मैक्सिमम प्रोलिफरेशन कब आएगा ना, जब कॉर्पस ल्यूटियम वाले कंडीशन आ जाएगा, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट। तो उसके बाद धीरे धीरे जब कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइज्ड एग ना हो तो क्या हो जाएगा ना, ये इसका कोई काम नहीं, धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा। और एंडोमेट्रियम लेयर जो ये अंदर का लेयर जो था, एंडोमेट्रियम लेयर जो पहले आपको दिखाई, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर प्रोलिफरेट हुआ था, अभी उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि और एग फर्टिलाइज्ड होकर तभी तो इधर आएगा, इम्प्लीमेंट होगा। अगर फर्टिलाइज्ड एग ना हो तो ये एंडोमेट्रियम लेयर क्या हो जाएगा, ब्रेकेज हो जाएगा। ब्रेकेज होने के साथ साथ अनफर्टिलाइज्ड एग, एंडोमेट्रियम लेयर, ब्रोकन एंडोमेट्रियम लेयर एज वेल एज द ब्लड वेसल्स आर कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अभी क्या मार्किंग ऑफ इन ह्यूमन बीइंग्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस, मतलब स्टॉप कब हो जाता है, अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, एंड दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। सो एक तो मेनार्की जिसको हम लोग स्टार्टिंग बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मेनार्की, और मेनोपॉज किसको बोलते हैं ना, जो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज के ये साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर। ओके।